सैयद जामी अशरफ साहब खंबात शरीफ गुजरात से तशरीफ़ लेकर आए हुए हज़रत सैयद मुर्तज़ा अली चिश्ती रहमतुल्लाह के तीन रोज़ा उर्स के मौके पर आप खिताब नात कलाम पेश कर रहे हैं। सीधी लाइव तस्वीरें बरेली दर्पण आपको दिखा रहा है। मोहब्बत ने बड़े प्यारे अल्लाह से कीदा दिया सारे किताब जहां करते हैं काबे कतवा काबा करता है तवा फेदर वाला तेरा तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसे खुश हुई जो मेरा खुश है और लाडला बेटा तेरा मेरे नबी का अब्दुल कादिर बेटा भी कुछ ऐसा है गौस कुतुब दामन पसारे आते उनकी सखावत कावलियों में चर्चा भी कुछ ऐसा है उनकी सखावत कावलियों में चर्चा ही कुछ ऐसा तेरी हूँ शुक्र है रब्बे कदीर का दामन है मेरे हाथ में पीरान पीर का तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है तेरे हाथ खेला जिया से आजा मेरे नबी का अब्दुल बेटा ही कुछ ऐसा है ऑडियो सुन लो, ऑडियो आना नहीं आ रहा। नबी का अब्दुल कादिर बेटा ही कुछ ऐसा है। ये बदरुद पाक बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए। बड़ी तेजी के साथ कलाम पाक की मैंने मशहूर आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया। अल्लाह तआला फरमाता है, मफ़हूम में आप समझिए, जो लोग कहते हैं अल्लाह हमारा रब है, नौजवानों गौर से सुनना, अल्लाह हमारा रब है, फिर उसी पर कायम रहते सुम्मा इस्तक़ामू, यानी उसी पर कायम होकर के वो दुनिया फानी से कुछ बनवा जाता है। तो अल्लाह फरमाता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह उन पर उनकी बारगाह में फरिश्तों का नुज़ूल फरमाता है।
فرشتوں کا نزول فرماتا ہے۔ میرے دوستو اب آپ یہ سوچو کہ جو کہے اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا رب ہے اور اسی پر وہ قائم رہے، تو اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ بغداد میں غوث اعظم کی زیارت کر کے آؤ، جاؤ اجمیر میں خواجہ غریب نواز کی زیارت کرو، جاؤ کلیر میں صابر پاک کی زیارت کرو، جاؤ مکنپور میں زندہ شاہ مدار کی زیارت کرو، جاؤ کچھوچھا میں مخدوم سمنا کی قبر کی زیارت کرو، مہرنا میں جاؤ شاہ برکت اللہ کی مزار اقدس کی زیارت کرو۔ دوستو آسمان سے اللہ فرشتوں کو بھیج رہا ہے، کہاں؟ دنیا میں، اور کس لیے؟ کہ جاؤ ان کی زیارت کرو۔ یہ ایسے بندے ہیں جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اب اسی آیت کے تحت ایک عقیدہ لے کر کے آج شاہ علی مرتضیٰ کے عرص سے لے کر کے جاؤ، ایک اللہ کے ولی کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے کہ اگر وہ استقامت کے ساتھ خدا کو راضی کر کے اس دنیا فانی سے کوچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو بھیجتا ہے، جاؤ ان کی زیارت کے لیے جاؤ۔ تفسیر میں آتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، تتنزل باب تفاعل سے ہے، یعنی کیا سمجھ میں آیا؟ ایک دو تین چار کر کے نہیں بلکہ فرشتوں کی اتنی بڑی جماعت اترتی ہے کہ مفسرین لکھتے ہیں ہر فرشتہ دوسرے فرشتے کو دھکا لگاتے لگاتے ان کی قربت تک پہنچتا ہے، ایک دوسرے سے ان کا نوری جسم مس ہوتا ہے۔ تو پتا کیا چلا کہ قبروں پر آنا یہ 100-200 سال کا عقیدہ نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ نے اپنے ولیوں کی شان بیان کی ہے، جو اللہ کا ہوتا ہے جب فرشتے اس کی زیارت کو آ سکتے ہیں۔ اب ہم اجمیر جائے، ہم کچھوچا جائے، ہم کلیر جائے، ہم دلی جائے، ہم مہرا جائے، فتوے مت لگانا، کیونکہ ہم اپنی مرضی سے نہیں، جو رب آسمان سے فرشتوں کو بھیج سکتا ہے وہی رب زمین سے ہمیں بھی بھیجا۔ مسلک حضور رئیس العلماء، حضور سید جامی اشرف، حضور رضوان میاں صاحب قبلہ۔ ایک بات اور ذہن میں رکھنا، ہم اللہ کے ولی کی بارگاہ میں اپنی مرضی سے نہیں جاتے ہیں، اپنے ارادے سے نہیں جاتے ہیں، رب کے کہنے سے جاتے ہیں۔ رب بھیجتا ہے، صاحب قبر بلاتے ہیں، اس لیے ہم جاتے ہیں۔ ایک بات میں یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں، اے نوجوانوں غور سے سننا، یہ بتاؤ کلام پاک کی ایک آیت ہے جسے ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، ہر ٹائم ہم پڑھتے ہیں، کون سی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم۔ میرے دوست 24 والوں نے اس کا ترجمہ کیا، کیا کیا؟ اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ 24 کا ہے، اور 25 یعنی امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت قاطع نصیحت شمشیر سنیت امام عشق و محبت جو ترجمہ کر رہے ہیں، یہ اپنے علم کی بدولت نہیں، مصطفیٰ کی عشق کی روشنی میں کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ انہوں نے دکھا، اے اللہ تو دکھا۔ اب سنیو غور کرو، جب ولیوں کی بارگاہ میں جاؤ سمجھ جانا جو بھی پڑھی نماز تھی قبول ہوئی ہے، کیونکہ دعائی یہی باقی تھی۔ اے اللہ چلا، جب ہم اجمیر کی طرف چلے سمجھے پڑھی ہوئی نمازیں قبول ہوئی ہے۔
बगदाद को देख रहे हैं, कलियर को देख रहे हैं। उनके मुकद्दर में देखना है, हमारे मुकद्दर में चलना है। इसीलिए मैं कहता हूँ कल कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। हिसाब किताब जब हो जाएगा, सुन्नी जन्नती मसलक के हक पर चलने वाला जन्नत की तरफ चलेगा। ये हमें देखते रह जाएगा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर रईसुल उलमा, हुजूर सैयद जामी अशरफ, हुजूर रिजवान मियां साहब किबला, उर्से हुजूर सैयद मुर्तजा अली। ये देखते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे। कसम खुदा की, इमाम इश्क मोहब्बत की अकीदत तो देखो, मोहब्बत तो देखो। जब आला हजरत इन में देखेंगे 24 वालों को, कहेंगे बड़ा हुजूर की गुस्ताखी किया है, हुजूर के इख्तियार वाला नहीं मानता था, शाफ़ी रोज़े जज़ा नहीं मानता था। अब आला हजरत की जब बारी आएगी, पुल सिरात पर जब चलेंगे, तो आला हजरत जब नस्तियों की तरफ देखेंगे तो तरफ के इमाम इश्क मोहब्बत ऐलान करेंगे, रज़ा पुल से अब वक्त करने गुजरिए कि ऐ रब्बे सल्लिम सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर रईसुल उलमा, पीर सैयद जामी अशरफ। मेरे दोस्तों, अल्लाह का शुक्र मानो, ईद मिलादुन नबी का जब जुलूस निकलता है, चलते हम हैं, देखते वो हैं। चलते हम हैं, देखते वो हैं। वो पूछे तुम चलते क्यों हो, तो कहना पढ़ी हुई नमाज कबूल हुई है, पढ़ी हुई नमाज कबूल हुई है। और तुझसे उससे कहना तेरी भी दुआ कबूल हुई है, तूने तो दुआ मांगी थी, देखा तो तू हमें देख रहा, हम चल रहे हैं, हम चल रहे हैं। अच्छा एक चीज और याद रखना, देखने से कोई मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है बगैर चले हुए। और आला हज़रत क्या कहते हैं, ए अल्लाह खुद नहीं, तू चला, तू चला। यानी अहमद रज़ा अपनी मर्जी से नहीं, तेरे चलाने से चलता है। मेरे दोस्तों, आप सबको ये उर्स बहुत बहुत मुबारक हो। वक्त यकीनन दामनगीर है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर किसी मौके पर। और आप सब बरेली के अहबाब तो बड़े खुश नसीब हैं कि आपका शहर एक इश्क मोहब्बत की पहचान रखता है, जहाँ पर इमाम इश्क मोहब्बत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी, वो इमाम इश्क मोहब्बत, वो इमाम इश्क मोहब्बत जो गौसे आज़म की बारगाह करम में, गौसे आज़म की बारगाह करम में। आज तो हम लोग तो बोलते हैं हाँ हमारी निस्बत गौस पाक से है, हम कादरी हैं, ऐलान करते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, इमाम इश्क मोहब्बत की अकीदत तो देखो। कसम खुदा की मैं ऐसे उनका दीवाना नहीं बना हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नहीं बना हूँ। जब आला हज़रत को मैंने पढ़ा, आला हज़रत के कलाम को पढ़ा, आला हज़रत को समझा, तो समझ में आया कि इतने बड़े मुजद्दिद ये इल्म की बदौलत नहीं, इश्क़ रसूल की बदौलत बने हैं, इश्क़ रसूल की बदौलत बने हैं। आज आप देखो ना पूरे अहले सुन्नत वल जमात में, जो आला हज़रत को माने या ना माने, लेकिन आज हर स्टेज पर आला हज़रत को याद किया जाता है, आज उनके अशार को पढ़ा जाता है। मैं तो ये समझता हूँ हम पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, हमें कोई अपना भी नहीं कहता है कि ये नबी का दीवाना है। इमाम इश्क मोहब्बत की हुजूर से ऐसी उनसियत और मोहब्बत भी अपनों की बात तो बड़ी है। अशरफ अली थानवी भी लिखने पर मजबूर है कि अहमद रज़ा जब फतवे देता है तो मुस्तफा की मेरे दोस्त है नहीं, एक बार इनकी बेचैनी दूर रह गई है। हम बेचारे बुजुर्ग हैं, फरमाए माशाअल्लाह, कब से बेचारे हार के लिए परेशान थे। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आमीन आमीन। यही फूल तो हम लोग की पहचान है। बेशक, वाह वाह। कुछ लोग जो है समझते हैं ये पैरों में आता है, ये क्या है, बचना चाहिए।
हजरत आपकी दुआओं से अर्ज कर रहा हूँ, मुफ्ती साहब अगर गलत हो तो इस्लाह फरमाइएगा। मैं कहता हूँ हर फूल हुजूर पर दुरूद नहीं पड़ता है, हर गुलाब का फूल नहीं पड़ता, ये भी याद रखना। अगर हर पड़ता होता तो गणेश के सामने दुरूद शरीफ वाला फूल चढ़ेगा, मंदिर में गिरजाघर में दुरूद पढ़ने वाले फूल को अल्लाह ताला उसके पास पहुंचा देगा। जैसे इंसानों में ईमान वाले भी हैं, बेईमान भी हैं, ऐसे फूलों में भी ईमान वाले बेईमान हैं। फूलों में भी जो फूल आशिके रसूल की तुलबत पर या उलमाए अहले सुन्नत या अहले बैत के गर्दनों पे चढ़ता है, वो फूल अपनी किस्मत पर नाश करता है। ए अल्लाह तेरा शुक्र है, मुझे तो एक दिन फना होना था, आज मैं आले रसूल के कदमों चौखट पर फना हुआ। तो ऐसे ही फूलों को भी पहचानना पड़ता है, तो उसकी पहचान बहुत आसान है। जो हमारे सबके गले में आप देखो समझ जाना ये सुन्नी है फूल भी, और जो कहीं और भगवे रंग पर चढ़ा हो तो समझ जाना कि कोई और है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला आप सबको शाद रखे, आबाद रखे, बिलखुसूस हमारे पीर तरीकत रिजवान मियां साहब किबला को सलामत रखे। बेपनाह ये मोहब्बत अगर करूं तो वक्त दामनगीर है, पर इतना मैं कहता हूँ, जब मैंने आला हज़रत को पढ़ना शुरू किया ना, और मोहब्बत कितनी आला हज़रत को, आज कल के लोग क्या समझेंगे। आला हज़रत से किसी ने मुफ्ती साहब इस्तिफ्ता किया, कहा हुजूर ये सवाल का जवाब किसी वली के कौल से आप दें, किसी वली का कौल नकल करें। तो आला हज़रत 26वीं जिल्द बरकाते रज़ा पोरबंदर से जो छपी हुई है उसमें ये मौजूद है। तो आला हज़रत ने औलिया के अक़वाल से जवाब दिया, तो बेशुमार औलिया का जिक्र फरमाया, बेशुमार फरमाया। अभी आपसे कल कोई पूछेगा ये बताओ कल किसकी तकरीर हुई थी, कोई कहेगा जामे मियाँ की हुई थी, कोई कहेगा सैयद साहब की हुई थी, कोई कहेगा गुजरात से आए थे उनकी हुई थी, कोई कहेगा खंबात से आए थे उनकी हुई थी, कोई कहेगा किछोछा से आए थे उनकी हुई थी, कोई कहेगा रईसुल उलमा की हुई थी, कोई कहेगा फाजिल यमन की हुई थी। अपने अपने अंदाज से आप जिक्र करेंगे, लेकिन इमाम उसको मोहब्बत की मोहब्बत देखो। मखदूम सन्ना से जब आप फतवे में तहरीर करते हैं हुजूर मखदूम पाक के कौल को, तो आला हज़रत क्या लिखते हैं, मखदूम किछोछा ने फरमाया, अशरफ किछोछा ने फरमाया, ये नहीं लिखते हैं बल्कि लिखते हैं कुतुबे रब्बानी महबूब यज़दानी मीर सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सम्मानी, और इस पर भी कलम तो रोका नहीं। आगे लिखते हैं जो के सिलसिले चिश्तिया के सरदार है, जो के सिलसिले चिश्तिया के सरदार है। अब ये तहरीर इमाम इसको मोहब्बत की बता रही है। रहते थे परेदी में और मखदूम पाक से इश्क करना, तो कह सकते थे मखदूम किछोछा ने लिखा है, ऐसे नहीं। इतने अलकाबात के बाद और फिर ये लिखते हैं जो कि सिलसिले चिश्तिया के सरदार हैं। मेरे दोस्तों, मैं समझ गया कि वाकई में इमाम उसको मोहब्बत जब लिखते हैं ना तो मंजर को देख के लिखते हैं, मंजर को देख के लिखते हैं। कुछ लोग बगैर मंजर के लिखते हैं, उनका लिखना और होता है। जो मंजर को देख के लिखता है उसका लिखना और होता है। जो अपनी मोहब्बत में लिखता है उसका कलाम मखलूक में आम नहीं होता है। जो मंजर को देख के लिखता है उसका कलाम और उसकी ज़ात इतनी मकबूल होती है। मिसाल के तौर पर इमाम इश्क मोहब्बत जब गौसे आज़म की शान और अपनी निस्बत जोड़ते हैं तो देखते हैं जिसका मकाम ये है, जिसका मकाम ये है, कसमें खिला खिला के तुझे खिलाता पिलाता
दोस्तों, ये गौसे आजम की शान है। अल्लाह तबारक ताला उनके फ्यूज और बरकत से हम सबको माला माल फरमाए, आमीन आमीन। हम सबको हमारे सबके ईमान की हिफाजत फरमाए इंशाअल्लाह। इसके बाद आपके इस इलाके के एक जलीलुल क़द्र आलिम दीन मुफ्ती साहब किबला का, अच्छा क्या नाम है, माशाअल्लाह। देखिए, पहली बार मैं किसी आलिम का ऐलान कर रहा हूँ, ये भी पहला इत्तेफाक। तो माशाअल्लाह शहरे बरेली के ये पेश इमाम, शाही मस्जिद के इमाम इंशाअल्लाह तबारक तआला शाहाना अंदाज से और फकीराना तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी से आप सबके दरमियान में हाजिर होंगे इंशाअल्लाह तबारक तआला। आप लोग बड़ी ही इज्जत और मोहब्बत के साथ सुनना, ये सोच करके कि मेरी जो तकरीर 10 मिनट आप लोग दिखा रहे हैं मुझको, बिल्कुल वो 10 मिनट इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब किबला कवर कर लेंगे। आप लोग बिल्कुल मुतमईन रहें। अस्तगफिरुल्लाह। गुंबद और बाउंड्री के लिए हम दुआ करते हैं, चलो हम भी दुआ करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला खैर से असबाब पैदा फरमाए। और आप लोग का इलाका है, इस इलाके में 4 चांद लगाए और जिनके नाम पर खाते हैं उनके लिए कुछ लुटाएं इंशाअल्लाह। अल्लाह बेपनाह बरकतें अता फरमाएगा, बेपनाह माल अता फरमाएगा। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, शाद और आबाद रखे। तो बराए करम आप सब बैठे रहेंगे, कोई उठेगा नहीं, क्योंकि कुर्सी चीज एक ऐसी है जो बैठता है वो कभी ये नहीं सोचता कि मैं खड़ा हूँ, ठीक है। तो आपको आज कुर्सी पर बैठाया गया है। किस पर बैठाया गया है? कुर्सी पर बैठाया गया है। और इंशाअल्लाह तबारक कुर्सी पर बिल्कुल चिपक के बैठे रहे, ये सोच करके कि दिल्ली से कुर्सी को हटाना है तो हमें यहाँ पर बैठना है। अगर हटाने का इरादा हो तो अब इंशाअल्लाह तबारक ताला मुफ्ती साहब किबला आपके दरमियान तशरीफ लाएंगे और बकिया मेरी गुफ्तगू को इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल फरमाएंगे। उनके इख्तियार की बात, उनकी मर्जी की बात है। फिर इंशाअल्लाह तबारक ताला किसी मौके पर हाजिरी होगी आपके मोहब्बत के दरमियान। मैं एक बार फिर से हजरत हाफिज क़ारी जनाब तहजीब रजा तहसीनी मीरानी और इनके तमाम रुफ़क़ा का ममनून मशकूर हूँ जिन्होंने आपकी दयार मोहब्बत में मुझे पहुँचाया। और मेरे वहाँ भी 27-28 को उर्स है नवंबर में, अभी आने वाले दिनों में, और मेरी भी काफ़ी मसरूफियत थी। लेकिन जब तहजीब भाई की मोहब्बत, और मैं ये देखता हूँ कि मुझे जो चीज़ पसंद है, ये हमारे साथ भी खिदमत में रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खानका की तरबियत ये है कि बाबू तुम भले मेरे साथ रहो, हम कुछ भी दें, तुम यही समझना ये तहसीन मिल्लत का करम तुम पर बरस रहा है। पीर के साथ, पीरजादों के साथ, पीर खाने के साथ वफादारी से जुड़े रहना ही समझना तुम हमारे साथ जुड़े हुए हो। तो मुझे बेपनाह खुशी होती है कि हजरत की खिदमत में भी रहते हैं, वो बेलौस खिदमत भी करते हैं। मेरे इल्म के मुताबिक अल्लाह इन्हें भी खुश रखे और साहिब कब्र की बरकत से इन्हें भी माला माल फरमाए। और तमाम उलमा का, हमारे सैयद साहब किबला का, सैयद निशान साहब किबला का मैं शुक्रगुजार हूँ, लोगों ने वक्त निकाला मेरी मोहब्बत में बैठे। अल्लाह हम सबका हासिल हो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अब आइए हज़रात, आप हज़रात जाएं कि अब मैं बिला किसी ताख़ीर खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मुफ्ती खुर्शीद आलम साहब किबला से गुजारिश करता हूँ हज़रत तशरीफ लाएं। सारे लोग अपने हाथों को बुलंद करके नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, बसरी बसरी करिया करिया।